بسم اللہ الرحمن الرحیم قوم نہ گئے دیوبند کے ستارے دنیا پہ چھا گئے ہیں دیوبند کے ستارے. اس کا میدان ہوگا، علماء دیوبند نظر آئیں گے. میں نے کہا گھوم جا، پوری کائنات میں گھوم جا، پوری دنیا میں گھوم جا، کوئی خطہ ایسا نکال لا جہاں دیوبند کا فیض نہ پہنچا ہو. میں نے کہا اللہ عجیب اتفاق ہے، میں نے مدرسے دیکھے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، ہاں ان کے طلباء ہزاروں کی تعداد میں ہیں، شاگرد جو ہیں ان کی تعداد ہزاروں ہیں، استادہ کی تعداد ہزاروں نہیں سینکڑوں میں ہے. میں نے کہا اللہ پھر بھی اتنا فیض کا درخت ہے، ایک شاگرد ہے، ایک استاد ہے، پوری دنیا میں فیض پھیلا ہے، تو پھر مجھے کہنے دینا اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے اکابر کا اخلاص تھا، یہ میرے اکابر کا تقوی تھا، یہ میرے اکابر کی طہارت تھی، یہ میرے اکابر کا علم تھا، یہ میرے اکابر کا عمل تھا، یہ میرے اکابر کی جرت تھی. میں نے کہا کہ یہ بات اپنی جگہ بجا ہے، لیکن سب سے بڑی بات وہ ہے جو میرے آقا کی نسبت ہے، وہ جو آقا نے نشان لگا کے دیا، وہ جو آقا نے نسبت دی ہے، یہ میرے محبوب کی نسبت ہے. تو پھر مجھے کہنے دینا یہ نسبت اتنی مضبوط چیز ہے، اگر غار ثور کے ساتھ ہو جائے اللہ اسے بھی عصمتیں عطا کر دیتے ہیں، غار ہرا کو مل جائے اسے بھی اللہ عصمتیں عطا کر دیتے ہیں. یہ میرے محبوب کی نسبت ہے. اگر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کو ملے اللہ اس کو بھی عصمتیں عطا کر دیتے ہیں، یہ میرے محبوب کی نسبت ہے. اگر ایک لکڑی کے تنے کو ملے اللہ اسے بھی عصمتیں عطا کر دیتے ہیں. اگر حجر اسود کو مل جائے اللہ اسے بھی عصمتیں عطا کر دیتے ہیں. یہ میرے محبوب کی نسبت ایسی عجیب چیز ہے. اگر حلیمہ کی کٹیا کو نصیب ہو جائے اللہ اسے بھی عصمتیں عطا کر دیتے ہیں. اگر حلیمہ کی بیمار بکری کو مل جائے اللہ اسے بھی عصمتیں عطا کر دیتے ہیں. اگر حلیمہ کی اونٹنی کو مل جائے اللہ اسے بھی عصمتیں عطا کر دیتے ہیں. اگر یہ ہے سخاوت کے تاجدار بنتے ہیں، حضرت علی کو ملتی ہے، شجاعت کے تاجدار بنتے ہیں. میں نے کہا یہ نسبت بڑی عجیب چیز ہے. میں نے کہا یہ نسبت حسنین کریمین کو ملتی ہے، جنت کے شہزادے بنتے ہیں. حضرت امیر حمزہ کو ملتی ہے، سید الشہداء بنتے ہیں. امیر معاویہ کو ملتی ہے، کاتب وحی بنتے ہیں. میں نے کہا 1,24,000 کم و بیش صحابہ کو ملتی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بنتے ہیں. میں نے کہا یہ نسبت بڑی عجیب چیز ہے. اگر ذرے کو مل جائے ستارہ بنتا ہے، چھوٹے کو مل جائے بڑا بنتا ہے، بد تہذیب کو مل جائے با تہذیب بنتا ہے، بد اخلاق کو بن جائے با اخلاق بنتا ہے. عرب کے بدوؤں کو مل جائے زمانے کے امام بنتے ہیں. نا یہ نسبت بڑی عجیب چیز ہے. اگر جناب بلال کو ملے، بلال چلتا فرشوں پہ ہے، آواز اللہ کے عرشوں پہ آتی ہے. میں نے کہا یہی نسبت دارالعلوم دیوبند کو ملی ہے، اس لیے تو فیض پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، انشاءاللہ قیامت تک پھیلتا رہے گا. کیوں؟ ہمیں اپنے علم پہ نہیں، اپنے عمل پہ نہیں، اپنے اخلاص پہ نہیں، اپنے تقوی پہ نہیں. اگر ناز ہے تو نبی کی نسبت پہ ناز ہے. تو پھر مجھے کہنے دینا عمل کی میرے پاس اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے. رہے سلامت تمہاری نسبت. آقا میرا تو ایک آسرا یہی ہے، کرائے گا پاکستان. خیر میں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا دارالعلوم دیوبند کی بنیاد میں نے کہا لے آ. چل میں اسے بھی کہتا ہوں، میں چھیڑتا نہیں. میں نے کہا میں مسلک کی بات نہیں کرتا، میں صرف اتنا ضرور کہتا ہوں تو بھی لے آنا، تو بھی ہمت کرنا. اگر تیرے پاس بھی ایسی نسبت ہے میں ایک جملہ ضرور کہوں گا. میں نے کہا دنیا آج تک انگریز کے پٹھوں مل کے آج تک دیوبند کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. بیٹا یہ نہیں مٹے گا، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے. کیوں؟ میرا نظریہ ہے جس کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہو گئی وہ کبھی مٹنے والا نہیں ہے. خیر میں عرض کر رہا تھا نمبر 1 ذات دارالعلوم دیوبند کی ذات بھی بے مثال ہے. اس میں پڑھائے جانے والے علوم بھی بے مثال ہے. حیدرآباد کو آگے چلاتا ہوں، وقت نہایت ہی مختصر ہے. میرے بھائیوں توجہ کرنا، آپ کہیں کہ ذات کو سمجھ آئی ہے، یہ علوم کیسے بے مثال ہے. میں نے کہا ان علوم کی نسبت بھی بہت بڑی ہے. آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ میں نے کہا چل میں تجھے لے چلتا
हूँ। इमाम मसरूक रहमतुल्लाह अलैह के पास इमाम मसरूक फरमाते हैं, मैं सहाबा के सबसे ज्यादा करीब था, मैंने सहाबा से बहुत ज्यादा इल्म हासिल किया। आपने क्या देखा? कहा मैंने ये देखा, मैंने खुलासा और निचोड़ ये निकाला कि अल्लाह ने इल्म दिया नबी को, नबी ने इल्म दिया सहाबा को। सारे सहाबा के इल्म का निचोड़ 6 सहाबा में नजर आता है और 6 के इल्म का निचोड़ 2 में नजर आता है। मैंने कहा वो 2 कौन से हैं कि जिनमें सारे सहाबा के इल्म का निचोड़ नजर आता है? कहा वो 2 सहाबी हैं। नंबर 1 हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, नंबर 2 हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु। मैंने कहा अब तवज्जो करना, चल मैंने कहा तलाश करते हैं, निकलते हैं, मक्का मुकरमा चलते हैं, देखते हैं मक्का मुकरमा में हजरत अली भी नजर नहीं आते। और कूफे से नफरत करने वालों तवज्जो करना, अपने दिल पे हाथ रखना। मैंने कहा चलते हैं वो सहाबा जिनमें नबी के सारे सहाबा के इल्म का निचोड़ है। मैंने कहा चल मक्का मुकरमा चलते हैं, वहां जनाबे अली भी नजर नहीं आते, वहां जनाबे अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी नजर नहीं आते। मैंने कहा चल फिर मदीना मुनव्वरा चलते हैं, वहां हजरत अली भी नजर नहीं आते, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी नजर नहीं आते। मैंने कहा कहां मिलेंगे? मैंने कहा चल फिर कूफा चलते हैं। मैंने कूफा में जाके देखा इब्ने मसूद भी है, हजरत अली भी है। आपके जहन में सवाल उठेगा मौलवी साहब क्यों? मैंने कहा इसलिए कि वहां तेरे और मेरे इमाम ने पैदा होना था, वहां तेरे और मेरे इमाम ने क्या नक्शा बना? अल्लाह ने इल्म हुजूर ने सारे सहाबा के इल्म का निचोड़ कितनों में? और दोनों कहां पे? नहीं बोलते, कहां पे? कूफा में। मैंने कहा मेरा इमाम भी कूफा में। आप कहेंगे मौलवी साहब आप तो उलमाए देवबंद की इल्मी सनद बयान करने जा रहे थे, आप तो दारुल उलूम देवबंद में पढ़ाने जाने वाले उलूम को बयान करने जा रहे थे, आप कहां पे पहुंच गए? मैंने कहा अब आना, इधर इमाम अबू हनीफा है, इधर हजरत अली है, इधर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद है और इधर मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह है। मैंने कहा अब देखना, हजरत ननोतवी ने इल्म हासिल किया शाह इसहाक से, शाह इसहाक ने शाह अब्दुल गनी से, शाह अब्दुल गनी ने शाह अब्दुल अजीज से, शाह अब्दुल अजीज ने शाह वलीउल्लाह से, शाह वलीउल्लाह ने शेख अबू ताहिर मदनी से, शेख अबू ताहिर मदनी ने मोहम्मद बिन अहमद से, मोहम्मद बिन अहमद ने हाफिज हसामुद्दीन से, हाफिज हसामुद्दीन ने शेख रबी इब्ने सबी से, शेख रबी इब्ने सबी ने 2 वास्तों से इमाम आइनी से, इमाम आइनी ने इमाम बुखारी से, इमाम बुखारी ने हजरत हम्माद से, हजरत हम्माद ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने जनाबे इमाम आदम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से, इमाम अबू हनीफा ने हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और हजरत अनस बिन मालिक ने जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तभी तो मैंने दावा किया है ये देवबंद की जात जो है ये भी बेमिसाल है, देवबंद के उलूम जो है ये भी बेमिसाल है। इसलिए तो फैज़ पूरी दुनिया में फैल रहा है और इंशाअल्लाह फैलता रहेगा, फैलता रहेगा। क्यों? मैंने कहा ये मदरसा है तेरा महकदा नहीं साकी, तवज्जो करना, देवबंद का फैज़। मैंने कहा हाँ ये समुद्री देख, मैंने कहा समुद्री में तुझे फैज़ यहाँ नजर आता है, ये देवबंद की शाख है, उमर फारूक नजर आता है, ये देवबंद की शाख है, जामिया रब्बानिया नजर आता है, ये देवबंद की शाख है, मेरा एक से एक मदरसा ये देवबंद की शाख है। तो फिर मुझे कहने देना ये मदरसा है तेरा महकदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। यहाँ की खाक से क्या किया जाता है? क्या बनाए जाते हैं? इंसान बनाए जाते हैं। मैंने कहा तू भी देख ले, मदारस पे बात करने वाले तेरे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में क्या होता है, अल्लाह माफ करे आप भी खबरें सुनते हो, मैं भी खबरें सुनता हूं, लेकिन ये मदारस जो हैं इनकी खाक से क्या होता है? इंसान बनाए जाते हैं। भाइयों तवज्जो करना, मैंने कहा मेरे अकाबर की इल्मी खिदमत अगर मैं शुरू करूं तो वक्त इजाजत नहीं देता। हजरात स्टेज पे तशरीफ फरमा है, मैं अपनी बात को समेट के आखिरी बातें कहता हूं। मैंने कहा मेरे अकाबर ने कुरान करीम की खिदमत की है, हदीस मुबारका की खिदमत की है, सुन्नत मुबारका की खिदमत की है, फिका और मसाइल की खिदमत की है। और जब कोई वक्त आया अगर किसी बातिल ने दीन को खराब करने की कोशिश की है फिर उसका रास्ता भी रोका है, रोका है कि नहीं रोका? आप पीछे देखते हैं, मैंने कहा आगे देखो बात तब बनेगी, रोका है कि नहीं रोका? जो कहते हैं रोका वो हाथ खड़ा करके कहें रोका कि नहीं रोका? तो सानू भी रोकना चाहिए कि नहीं? नहीं, आप डरते हैं, नहीं आप डरते हैं।
मौलवी साहब मस्जिद के लिए जा सी थे मदरसा, मैंने कहा कुछ कहीं नहीं जाएगा, अगर दारुल उलूम देवबंद को कुछ नहीं हुआ तो हमारे मदरसों को भी कुछ होने वाला। हाँ क्यों भाई, ना हम गोली की बात करते हैं ना हम गाली की बात करते, हम तो बात ही दलाइल की करते हैं। परेशानी तो उसे होना जो गोली और गाली की बात करे, हम गोली की बात भी नहीं करते, हम तो गाली की बात भी नहीं करते, हम तो दलाइल की बात करते हैं। मैंने कहा अब मैं खिदमत शुरू करूं तो फिर मुझे तो घंटा चाहिए, मैं आखिरी बात का पेश करके बात समेटता हूं। मैंने कहा किसी बातिल ने अगर दीन को खराब करने की कोशिश की है, मेरे अकाबर ने इल्मी मैदान सजा के उनका रास्ता रोका है। मैंने कहा तारीख उठा के देख ले, अगर अनकारे हदीस का फितना उठा है तो इल्मी मैदान सजा के उसको जवाब देने वाले हजरत मौलाना हबीबुर रहमान आदमी, मौलाना मनादर अहसन किलानी देवबंदी है। मैंने कहा भाई इसी तरह अगर ईसाईयत का फितना उठा है तो इल्मी मैदान सजा के उसको जवाब देने वाले अबुल मंसूर रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी रहमतुल्लाह अलैह ये देवबंदी है। राफियत का फितना उठा तो पहले पहले हजरत नानोतवी, हजरत सहारनपुरी और मैंने कहा फिर आगे चल के जब जनाब जरूरत पड़ी है तो हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार कौसवी, मैंने कहा इसी तरह इमाम अहले सुन्नत, इसी तरह हजरत मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, फिर बात आगे चली है। फिर मैंने कहा अमीर असीमत हजरत झाकनिवाज झंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत फारूकी, हजरत कासमी, मैंने कहा ये सब के सब उलमाए देवबंद हैं जिन्होंने नबी की नामूस के लिए, नबी के सहाबा की नामूस के लिए, नबी के अज़वाज अहले बैत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन उनकी इस्मत नामूस पे हरफ नहीं आने दिया। मैंने कहा भाई आगे चलिए, अगर गैर मुकल्दियत ने सर उठाया है तो इल्मी मैदान सजा के जवाब देने वाले हजरत गंगोही भी देवबंदी है। कौन है? गैर मुकल्दियत ने सर उठाया तो जवाब देने वाले कौन है? कौन है? नहीं बोल दे हूं, तुसी नहीं बोलना, मैंने पता है कौन है। देवबंदी हजरत गंगोही है। कौन है? हजरत गंगोही है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम अकाबर का नाम भी लेते और उनको पूरा पूरा मानते। हाँ भाई तवज्जो करना, मैंने कहा अगर जनाबे वाला खत्मे नबूवत के दुश्मन उठे हैं, अगर कादियानी आया है, फिर इल्मी मैदान सजा के उसे जवाब देने वाले मौलाना बदर आलम रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी हैं, चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी हैं, हजरत बुखारी देवबंदी हैं, हजरत कश्मीरी देवबंदी हैं। मैंने कहा आगे आओ, हजरत लाहौरी देवबंदी हैं, हजरत बिन्नौरी देवबंदी हैं, हजरत कांदलवी देवबंदी है, हजरत लुधियानवी देवबंदी है। मैंने कहा हाँ हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद देवबंदी है। मैंने कहा भाई ये सारे फितने जो उठे हैं इनके मुकाबले में उलमाए देवबंद आए हैं, सब कुछ कुर्बान कर दिया लेकिन सौदेबाजी नहीं की। आप ये कहें कि उलमाए देवबंद ने किया, मैंने कहा किया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कर रहे हैं। आज भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? भाइयों अंग्रेज ने जहां और बहुत सारे फितने खड़े किए, आखिरी बात तवज्जो से सुनना, हमारे यहाँ बड़ा अजीब ज़ौक़ है, बड़ा अजीब ज़ौक़ है मेरे भाइयों। मेरा नजरिया, मेरे इन हजरात का नजरिया है कि देवबंद से जो भी फैज निकला है वो हक है। वो क्या है? देवबंद से अगर तौहीद के लिए तहरीक निकली है, हक है। खत्म नबूवत के लिए निकली है, हक है। नामूसे सहाबा के लिए निकली है, हक है। और मैंने कहा इसी तरह अगर तबलीग के लिए निकली है, हक है। सियासत के लिए निकली है तो नहीं बोलते, हूं नहीं बोलते, हक है या नहीं है? मैंने कहा फिर परेशानी किस बात की है? मेरा नजरिया है जो ये कहता नहीं जी नहीं मौलवी साहब मैं तो बस एक जमात के साथ दूसरी जमात, मैंने कहा गलत, खुदा की कसम इसमें हमारी नाकामी है। हमारी जितने भी जमातें हैं, मैंने कहा ये अकाबर अपनी मर्जी से नहीं, ये तरतीब, ये सब अकाबर की तरतीब चली आ रही है। चूंकि मिशन अलहदा अलहदा थे, मिशनों की जरूरतें भी अलहदा अलहदा, तो मेरे अकाबर ने हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी तरतीब दी है। किसी को तौहीद पे, किसी को खत्म नबूवत पे, किसी को तसव्वुफ पे, किसी को तबलीग के, किसी को नामुसे सहाबा पे, किसी को गैर मुकल्लदियत के लिए, किसी को शिर्को बिदअत के पीछे लगाया, सबको अलहदा अलहदा कास दिया। चूंकि एक इंसान सब मिशनों पे नहीं चल सकता, तो भाई मेरा नजरिया है दारुल उलूम देवबंद से जो भी जमात निकली है वो हक है, ये नहीं है तो हमारा हक नहीं बनता हम अपनी किसी जमात पे तनकीद करें। सारी जमातें हमारी हैं, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। जो इस बात पे इत्तेफाक करते हैं वो हाथ खड़ा करके कहें अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों आज जितने भी कायदीन हैं वो हमसे बड़े हैं। वो कहते ना कोई चांद
थूके चांद का कुछ नहीं जाता, थूक अपने मुंह पे आता है। तो हम अपनी जमातों में से किसी जमात के कायदीन के खिलाफ अगर बात करेंगे, वो थूक हमारे मुंह पे आएगा, उनका कुछ नहीं जाएगा। हम तो सबकी जूतियां उठाना, उनको सीधा करना सआदत समझते हैं। और यही पैगाम मैं आपको भी देना चाहता हूं कि सारी जमातें हमारी हैं, सारी जमातें हमारी हैं। अंग्रेज ने 1857 के बाद जो मुख्तलिफ चालें चली, एक चाल उसने ये भी चली, क्यों? उलमा ने लिखा है इस्लाम की इमारत 3 बुनियादों पे कायम है। कितनी बुनियादों पे? आखिरी बात कर रहा हूं, तवज्जो करना। वो 3 बुनियादें कौन सी हैं? नंबर 1 तरीकत, नंबर 2 शरीयत, नंबर 3 सियासत। क्या है? मैंने नहीं लिखा, कारी मोहम्मद तैयब कासमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। कितनी बुनियादें हैं? 3 बुनियादें हैं। नंबर 1 तरीकत, नंबर 2 शरीयत, नंबर 3 सियासत। अंग्रेज ने क्या किया? उसने हमसे 2 चीजें छीनी हैं। उसने 2 चीजों से मुसलमानों को मुतनफ्फर किया। हाँ जनाब, इन 2 चीजों को बदनाम किया। उसने कहा तरीकत भी नहीं है। और देख लो, जो अंग्रेज ने बीज बोए थे, जो अंग्रेज के एजेंट हैं, आज भी अल्लाह के वलियों के खिलाफ बकते फिरते हैं, आज भी तसव्वुफ के खिलाफ वो बकते फिरते हैं। क्यों? अंग्रेज की चाल थी कि इनसे तरीकत भी ले लो, इनसे सियासत भी ले लो। आज जो हम कहते हैं ना कि मौलवी का सियासत से ताल्लुक नहीं है, ये सबक हमारा नहीं, अंग्रेज का है। किसका है? किसका सबक है? उसने क्या कहा? उसने कहा सिर्फ आप जनाब वाला अकीदा और इबादत ना भाइयों। कारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है इस्लाम कितनी बुनियादों पे कायम है। इस्लाम के ओहदे दौरान जो है इतनी जबरदस्त कामयाब कॉन्फ्रेंस कराने पे इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, अल्लाह से दुआ भी करता हूँ अल्लाह इस कॉन्फ्रेंस को आफियत के साथ इख्तिताम तक पहुँचाए। और इंशाअल्लाह हमने अपने मसलक की हर जमात का साथ देना। कहो इंशाअल्लाह जब सियासत की बात आएगी तो इंशाअल्लाह हम जमीयत के साथ हैं। अल्लाह मुझे और आपको अपने अकाबरीन, अपनी तमाम जमातों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने पहले भी अर्ज किया, अब भी बता रहा हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो। इंशाअल्लाह तमाम कायदीन के बयान होंगे इंशाअल्लाह।